Namaskar, Vandan, Pranam. Hello. I have to say hello for the young generation. मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ मेरे पिताजी को. Today I'm going to speak about my father, पितृदेवो भव. और मैं आज सुबह बात कर रही थी एक बड़े विद्वान से. He also loved my 2 sessions on my grandfather and said कि आपके पिताजी, माताजी और जो भी, तो हम सुनने को बहुत आतुर हैं. मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक मानसिक तर्पण कर रही हूँ. Tarpan, for those who do not understand Hindi, because there are friends in Malaysia, there are friends in America and others in India also. A lot of people have loved my sessions overall, but now about the bouquet of life, Jeevan Ki Sugandh. And I started with 2 sessions on my grandfather, paternal grandfather, Dadaji. So I was speaking to a great scholar this morning and about something else, but he said, Sonalji, we, meaning he, his wife, and others, we don't miss your sessions. The last 2 sessions especially make us feel part of your family. And revives the memories of our own family and ancestors, and we are now waiting to hear further. So I said, it is like paying homage, but homage is something that is, I said tarpan. Among the Hindu samskaras, after your ancestor, your immediate family elders, when they pass away, and there are certain rituals, and then there are annual rituals also. So tarpan karna is a special ritual where you repeatedly again pray to them and you offer your shraddha, your bhav, your respect and your gratitude. So I feel that I am doing that tarpan now. Each time I speak about my family, and further you will see, I'll take it forward. तो आज मेरे पिताजी के लिए मैं बोलूँगी. His name was Aravinda. Aravinda is a white lotus. And he really was white, in the sense, inside out. I would have liked to show his photograph, which was taken when he was much older. I think he was already past 60, 65. And I will hold it because my sister sent it to me. Yes? Can you see that? Now? Yes? And you see his eyes and such a Saumya face, and look at his skin like copper and tout. He never went to a beauty parlor. He never. But it was the reflection of his inner self. So Arvind Mangaldas Pakwasa. He was the elder son of my grandfather. बड़े पुत्र थे और छोटे पुत्र का नाम प्रवीण था. दोनों में बहुत आपसी प्रेम. एक बहन जन्मी थी जो गुजर गई, which was usually the norm those days, that if there were 5, then 2 would have died and whatever. But unfortunately, my kaka, that is Praveen Kaka, the younger brother of my father, he also died at the young age of 18 of double pneumonia. My grandmother, Malti Dadi, she passed away जब मेरे पिताजी was just 11 years old. 11 वर्ष के थे पिताजी और मेरी दादी भी गुजर गई थी. So Dadaji was bringing up the 2 boys, and then the younger one also passed away. So Dadaji and my father, Pitaji, that was the unit which was so tight and so mutually
respectful, affectionate, loving, and the inner understanding. तो आगे चलती हूँ. My father went to Bharada New High School in Bombay, where the majority of students were from Parsi community. And he was so close to them, I remember that lifelong friendships were formed. जिंदगी भर की दोस्तियां मेरे पिताजी ने बनाई और बनी, और वो पारसियों के साथ इतने घुल मिल गए थे कि इनके पारसी दोस्तों ने हाई स्कूल में ही उनको सदरों कस्ती पहना के, जो पारसियों का विशेष होता है, उपनयन जैसे कहते हैं, और उनका नाम रखा अरदेसर मंचेरजी पस्ताकिया, अरविंद मंगलदास पकवासा. और उसके लिए बड़ा भोज भी हुआ. माय दादाजी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. तो द पारसी सेंस ऑफ ह्यूमर, looking at life in a very different way, plus the paternal side Surat, the Surti humor, the Parsi love for food, the Surti love for food. And no wonder the initial Zoroastrians, when they went into self-exile, त्राही त्राही करके जब वहाँ पे आक्रांता पर्शिया में आए, they landed on the Gujarat coast, very close to Surat. Sanjan, Navsari, Udwara, this was the coastal area and closer to Surat. तो बहुत सारे ऐसे, there are compatible features. So my father's love for food and my father's humor was famous. As you see his eyes, बिल्कुल जो गांधार शैली के होते हैं ना, the Indo-Hellenic, बिल्कुल ऐसा उनका लगता था. तो जैसे मैंने I mentioned last time, we used to make fun. There must have been some Greek skeleton in our ancestral cupboard. Another thing that during the independence struggle, स्वतंत्रता लड़ाई में, संग्राम में, पिताजी was a silent worker. He was a courier. एक जेल से दूसरी जेल मैसेजेस ले जाना, लोगों को पहुंचाना, नेताओं को पहुंचाना, बिरला हाउस में जाना, ये सारा काम पिताजी करते थे चुपचाप. When Sardar Patel fell seriously ill, जेल में थे, and he was to be brought to Bombay for treatment. I think भगंदर कुछ उनको पेट में जो पानी भर जाता है, if I remember well. My father was given the duty, the responsibility, वो सरदार को जेल से निकाल के, यानी और भी तो थे स्टेशन में, लेकिन on the train there was only the coupe, दो लोगों का जो एक कंपार्टमेंट होता है, उसमें सरदार को सुला के सेवा करते 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 बम्बई लाए. और इतनी उनकी, यानी सरदार ने, पिताजी कहते कहते रो पड़ते थे. एंड दादाजी ऑल्सो न्यू अबाउट दैट. सरदार ने पिताजी को बोला, वासा में हाथ फेरा होता है पीठ के, अरविंद का सब लोग उनको अरु कहते थे, अरु भाई, अरु मांग शू मांगू छे, तने खबर छे कि हूँ बधुं आपी શકું. You know I can give you whatever, ask for anything. And apparently my father said, he touched Sardar's feet and said, મને કશું નહીં જોઈએ, મને તમારા આશીર્વાદ જોઈએ. And Sardar put his hands. My father never asked for anything to anyone. He remained a silent pillar of strength and clean as crystal. कोई उनका फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल कोई एम्बिशन नहीं. पिताजी यानी मेरे दादाजी की सेवा, देश की सेवा, एंड द वास्ट फैमिली ऑफ द पकवासा क्लैन. एक ही क्लैन है, पकवासा एक ही सरनेम है आज भी. दुनिया में कोई पकवासा कहीं आपको मिले, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, लंदन में, कहीं, दे मस्ट कम फ्रॉम दिस क्लैन. तो दादाजी की वजह से पकवासा नेम बिकेम फेमस. And when Dadaji was governor in Madhya Pradesh, C.P.N. Birar,
there were so many offers, you know how it is even today, political, what you call the copper mines, the iron ore mines, the copper mines, के ये करा दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए तो इतना आपका. My father would just say, ये बातें मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, please do not talk to me about that. You can talk about anything else, ये बिल्कुल नहीं. So my father was clean, clear as crystal. उनका एक नाम उनको दिया गया, अजात शत्रु. He had no enemies. I'll come to that later, how we found out, of course, during his life. But now going back to his school and his, I think 2 years of college, and he left it. He was always the shadow of my grandfather. I told you that Bhulabhai Desai's son, unka beta, Bhulabhai Desai ka beta, Dhirubhai Desai, and Chanchi Mehta, whom I mentioned in my last session, Chandravadan Chimanlal Mehta. They were great friends. Tikri, the Trinity. Badmash. बहुत हंसना हंसाना, लोगों की टिखड़ करना, जो गुजराती में कहते टिखड़ करो. Innocent remarks and comments and laugh. At that congress where my grandfather saw my mother and told these two friends to find out, get this girl for my Arvind. And when my mother came before marriage to meet my father and to see if they were compatible, 1 महीने तक मिले करे, और फिर they got married. Beautiful photographs of their marriage, which unfortunately I can't show. Maybe I'll post them on the Facebook later. So my mother came from a Jain family, my father Vaishnav, you know. Again, abhi it sounds funny, but in 1938 it was a big deal. तो उनका आर्य समाज विधि पहले रजिस्ट्रेशन हुआ एंड देन आर्य समाज विधि से विवाह हुआ. उसमें मेरे पिताजी याद कर रहे हैं, मुझे हिचकी आ रही है. आई एम श्योर ही इज देयर. एंड मुझे माफ़ करिए, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, बिकॉज आई हैव लिव्ड अलोन फॉर मेनी ईयर्स इन माई लाइफ. लेकिन मेरे दादा माता पिता का जो हाथ साया है मेरे सर पे आज भी, दे आर लिविंग प्रेजेंस इन माई लाइफ. तो मेरे पिताजी का विवाह हुआ माँ के साथ, एंड by then he was starting to play, learning दिलरुबा. दिलरुबा अभी मिलती नहीं है, अभी सारंगी मुश्किल से दिख रही है, तो उसका पहले वाला उसके साथ वाला एक था दिलरुबा. आपने बॉलीवुड हिंदी फिल्मों में सुना होगा, ओ दिलरुबा मेरी दिलरुबा, हीरो सिंगिंग टू द हीरोइन. तो उनके विवाह में मुरारजी देसाई गेव आइवरी दिलरुबा एज प्रेजेंट टू माय फादर. उसके पहले से पिताजी वो भी सीख रहे थे पखवाज. तो पंडित माधवराव अलकुटकर, वन ऑफ द फ्यू ग्रेट मास्टर्स ऑफ आवर टाइम्स, तो उनको घर में ही लाके गुरु को बिठाया और हर रोज सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा वो पखवाज सीखते थे. एक चीज़ और मैं मेंशन करूंगी अमंग सो मेनी, कि 1935 में 1935 my father saw my father and my grandfather, actually they went on a world tour. वो भी photos हैं. So those days of course they had to go by ship and by those initial flights that were taking off. तो जापान गए, चाइना गए, और वहाँ से होते हुए फिर आगे गए उस तरफ. आई थिंक रशिया तो नहीं गए होंगे, लेकिन यूरोप गए, और यूरोप से यूके गए. दे वेंट टू पेरिस ऑल्सो, वेयर माई मदर ऑलवेज टू टीज फादर, हाँ પેલી ફ્રેન્ચ છોકરીને નહીં પરણ્યા હોત ને તો આવા સુંદર તમારા છોકરાઓ નહીં હોત. Apparently he made friends with a lovely French young lady, and my mother used to tease him. Anyway, from there they went to London. लंदन में पिताजी ने
फोटो देखी अखबार में ऑफ अ ब्यूटिफुल शिप ट्रांस एटलांटिक जर्नी नॉर्मंडी। तो बिफोर क्वीन एलिजाबेथ एंड ये सारी जो बड़े बड़े आए लग्जरी, उसके पहले नॉर्मंडी वॉज द बिग शिप, और उसमें बैठ के जाना यानी इट वॉज अ बिग डील। what they said was that it had the blue ribbon, यानी it was the ultimate। तो मेरे पिताजी ने दादाजी से कहा अपने जाइए एम्मा जाइए। So whatever they had other reservations, my grandfather cancelled them and made reservations on Normandy first class, और उसमें वो लोग चढ़ के न्यूयॉर्क गए। अब वो ही नॉर्मंडी यानी पिताजी की यादें कि कैप्टन ऑफ द शिप, हाउ ही यूज्ड टू इंडल्ज माय फादर एंड ऑल दैट। बाद में अनफॉर्चुनेटली ऑन वन ऑफ इट्स ट्रिप्स ट्रांस एटलांटिक इट हिट एन आइसबर्ग एंड नॉर्मंडी सैंक। आई रिमेंबर माय फादर क्राइंग इवन व्हेन ही टॉक्ड अबाउट इट। चलो, तो माय फादर मैरिड माय मदर and my mother was a strong woman. My father was strong but internally very strong. He never showed off that he was strong. तो इसीलिए I think उनका विवाह, उनकी शादी stable रही, because one has to be the backbone. If both fight like that and both try to control and try to prove their supremacy, relationships don't work normally, especially in marriage. आप सब जानते हो, मैं भी हूँ, मैं भी experienced हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो ये विवाह हो गया, और उसके बाद मेरी बहन का जन्म हुआ 1940 में। I was born during the war times in 1944, and there are beautiful photographs with my father. I was a little baby, सो रही हूँ उल्टी माँ की गोद में, माँ थकी हुई लग रही है। माई सिस्टर इज सिटिंग 4 साल बड़ी बड़ी सयानी चुपचाप, एंड माई फादर इज पीपिंग फ्रॉम बिहाइंड वेरी हैप्पी। तो जब बड़े हुए, स्कूल जाने लगे हम लोग, माई फादर वॉज स्पेशली गिवन चार्ज ऑफ मी। माई मदर कुडंट कंट्रोल मी इवन व्हेन आई वाज यंग, and I was a terror। मैं खाना नहीं खाऊं, उठ के भाग जाऊं, दूध का गिलास कप लेके, जो भी था कटोरा लेके। भीमा जी, I told you about Bhima ji, who came during the war to look after me. I was a baby, मालिश करना, नहलाना, सब कुछ। मम्मी माँ couldn't get a nurse, आया तो भीमा जी बेचारा दूध लेके, सोनिया दूध पी ले, सोनिया दूध पी ले, नहीं। अच्छा, दूध पीने बैठी भी तो एक छोटी चींटी चली, मैं उठ के भागी। Oh my God, I'm told I was terrible. I'm sure I was. तो खाना भी ऐसे वैसे भाग दौड़ ना। 1952 में हम लोग वापस आ गए नागपुर से बम्बई। After my grandfather, his tenure as governor was completed. My father used to come and go because बम्बई का जो फ्लैट था, पिताजी का जो बिजनेस था कॉटन, उसमें थोड़ा बहुत वो करते थे एंड आते जाते थे। अब वापस आ गए तो 1953 में 1953 my mother joined and my sister Aarti, they joined a small group of friends, one family actually, husband and wife with their servants, to go to Badrinath and Kedarnath. 1953. There were no flights to Badrinath. It was not tourism. Please understand what I'm saying. And I say it with a sense of, what shall I say? मुझे बोलते हुए थोड़ा दर्द होता है कि हमने हर चीज़ को टूरिस्टिक बना दी है। The sanctity, the sacred emotion, वो भाव, एक यात्रा का भाव अब नहीं रहा। Oh, how can old people go? सदियों से लोग जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? जा रहे थे।
We are the new people who want 5-star comforts everywhere. कैसी यात्रा हुई है? What kind of a pilgrimage is this when your helicopter flies over the peak or over the yatra, the mandir? What kind of a pilgrimage is that? Anyway. तो ये लोग माँ और मेरी बहन गए और बिल्कुल उनको पूरा ऋषिकेश से आगे से उनका चलना शुरू हुआ. फिर वो चमोली और सारे उनके माँ ने उस पर पुस्तक लिखी है, जय श्री बद्री केदार. वो अलग बात है. क्या हुआ कि that 1.25 months उसमें मेरे पिताजी ने मुझे हाथ में लिया और पिताजी सुबह भोजन खाना रोटी दाल चावल सब्जी सब खा के जाते थे ऑफिस. और उसके बाद उनका पूरा दिन वो जो शेयर बाज़ार हो, कॉटन मार्केट था, फिलैचली था, उस पर मैं आती हूँ. तो हमारा भी तो जाना स्कूल में, हम लोग भी खा के जाते थे, लेकिन मैं खाती नहीं थी. पिताजी ने मुझे अपने साथ बिठाना शुरू किया एकदम, और वो मुझे एक एक ग्रास खिलाते थे खुद. और उनके हाथ में पता नहीं क्या अमृत था और जो प्रेम था. तो मैं खाने लगी. I started eating. By the time my mother returned, there was a miracle. I was perfect. I would sit on the table. I would eat everything. ये वो सब कुछ ऐसे है, ये कैसे हो गया? My father wouldn't say anything, but Bhima ji and they all said, खिला खिला के. What my mother didn't do, my father did. उसके बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ 1948 में. मेरे पिताजी के बारे में इतना ज़्यादा मेरे पास वो है, लेकिन जैसे दादाजी के इतने प्रसंग हैं, पिताजी के जो प्रसंग हैं वो बहुत इंटरनल है. Some which I cannot even begin to describe. He was so proud of me. मैं नृत्य कर रही हूँ, मैं जर्मन सीख रही हूँ, मैं स्कूल में डांस कर रही हूँ, मैं संस्कृत में विषय कोविद वगैरह कर रही हूँ, मैं सितार सीख रही हूँ. हर एक चीज़ में पिताजी was the one who, like दादाजी, supported me. और माँ काफ़ी सख्त थी. पिताजी would explain to her and silently push me, propel me. मुझे याद नहीं है कि कभी ओपनली हम लोगों के सामने माँ को ओपोज किया हो. That much respect. Today we need to understand that. लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ों को, परिस्थिति को बदल सकते थे, मुझे बाद में समझ में आया how he influenced quietly, gently, beautifully. मुझे एक विशेष प्रसंग का वर्णन करना है कि 1964 में मैं पहली बार दिल्ली आई थी नृत्य करने. उसके पहले हम आ चुके थे 1948 में दादाजी के साथ गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस. उसके बाद हम लोग कश्मीर जा रहे थे, माता जी, मेरा छोटा भाई, मेरी बड़ी बहन और मैं. That was in 1954 with the school. हमारे फेलोशिप हाई स्कूल का एक ग्रुप बना के ले जा रहे थे, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसमें हम लोग गए. तो दिल्ली होके गए बिरला. वी स्टेड इन बिरला हाउस. बिरला फैमिली के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था, लाइक दी बजाज फैमिली. आज राहुल बजाज जो हैं, उनकी बुआ, 3 बुआ थीं. वो तीनों बुआएं मेरे पिताजी को राखी बांधती थीं. तो ऐसे ऐसे जो पुराने रिश्ते थे, उनका तो बयान मैं कर नहीं सकती. कुछ लोगों के साथ रहा, कुछ का छूट गया, लेकिन वो यादें ताज़ी हैं. तो पिताजी जब मैं 64 में आई यहाँ, और उसके बाद मेरी पहचान हुई एक विशेष व्यक्ति से, उड़ीसा के थे. और उसके बाद वो विदेश चले गए. उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को लिखा, और मेरे पिताजी ने अपने पिताजी मेरे दादाजी को बताया. You know that person who left for abroad was from Orissa, and then we had
what shall I say, Patra Vyavhar, correspondence also. And then he wrote to his father in Orissa, his father wrote to my father, I've mentioned that earlier. But what happened? मेरे पिताजी ने दादाजी के साथ बात की. Then my mother sat in it. My mother said, nothing doing. What is this? फिर दादाजी ने कहा, उसका मन है, सोनल का मन है. I was in Bangalore with my guru. I told you I ran away. तो वहाँ पे वो खटकाया ऑपरेटर वाला और फिर कहा कि बोलो ऐसा पत्र आया है, क्या करना है. मैंने कहा क्या करना है, मुझे तो करना है, आप देख लो. उतना, that was enough. So my grandfather told my father, पिताजी से कहा, भाई अपनी बेटी का मन है, करते हैं, चलो. अब वो उन्होंने यहाँ लिखा था कि आप अपनी बेटी को लाइए, हम सब मिलना चाह रहे हैं और निर्बंध होगा, एंगेजमेंट सेरेमनी कटक में होगी. लड़का तो विदेश में है. दादाजी ने कहा ठीक है, अरु तू ले जाओ. नो, कैन यू इमेजिन. अब मेरे पिताजी ने एटलस खोला. उन दिनों कटक कहाँ है, कैसे पहुंचा जाए बम्बई से, उसके लिए उन्होंने एटलस खोला. वहाँ से कलकत्ता जाएंगे और कलकत्ते से ट्रेन पकड़ के कटक जाएंगे, ये तय हुआ. So we flew into Calcutta, or I think maybe we went by train, I don't remember. बिरला हाउस में रहे और फिर दूसरी रात की ट्रेन पकड़ के कटक गए, पिताजी और मैं. और कटक वो सारी खबर वहाँ दे दी थी, तार वगैरह गए थे. वो तार पहुँचे नहीं पहुँचे, व्हाट हैपेंड कि कटक रेलवे स्टेशन पे बड़ी सुबह वो ट्रेन रुकी. अब मेरे पिताजी तो समझी के यहाँ बेटी को ला रहे हैं, तो उन्होंने अपना बराबर वो अचकन और ये चूड़ीदार वो सब पहना था. सुबह 7 बजे या 6:30 पौने 7 बजे हम लोग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उतरे. कूली ने सामान उतारा, यहाँ वहाँ देखा, देखते रहे प्लेटफॉर्म, लोग जा रहे हैं, कोई नहीं. चलो बाहर, चलो भाई, बाहर रुके होंगे, बाहर कोई नहीं. उन दिनों there were no taxis, only the pedal rickshaws. कटक रेलवे स्टेशन. अब क्या करें, बैठो भाई. उनका एड्रेस था थोरिया साही, नाम था डॉक्टर मायाधर मान सिंह. तो चलो थोरिया साही ले चलो. तो एक रिक्शा में आई रिमेम्बर माय फादर सैट विथ हिज आचकन शेरवानी ऑन. मैं बैठी दूसरी रिक्शा में, सामान. 2 रिक्शाएं सुबह सुबह जा रही हैं. एंड दोज ईयर्स कटक वॉज नॉट डेवलप्ड लाइक टुडे. सो अर्ली मॉर्निंग जो पिक्चर हमने देखा, यू नो, पीपल बाय द रोड साइड. एनीवे, तो मैं सर ये कहाँ आ गए. आई रिमेम्बर हिज फेस. फॉर वंस आई सॉ हिज फेस sort of, you know, I was also, what could I say? तो अंदर पहुँचते थोरिया साही पहुँचे. और उनके गेट से मुझे याद है कि थोड़ा सा ढलान था, तो रिक्शाएं धड़ और घंटियाँ बजा रही हैं. और घंटियाँ बज रही है, अब वो नीचे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी रहते थे, तो आवाज़ लगाई किसी ने, और रिक्शा वाले ने शायद आवाज़ लगाई. So Dr. Madhav Mansingh came out in his banyan and he was getting ready to go to Bhubaneswar airport. उनको तार पता नहीं मिला था क्या हुआ. तो ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 बार थी शायद भुवनेश्वर हॉपिंग फ्लाइट. वो शायद कलकत्ते से आती थी वगैरह, कलकत्ते से आती थी, नॉट फ्रॉम दिल्ली, कलकत्ते टू भुवनेश्वर. तो कटक से भुवनेश्वर जाने के लिए उन्होंने गाड़ी मंगाई थी, वो तैयार हो रहे थे. और यहाँ रिक्शा में पिताजी और मैं बैठे. ओ माय गॉड, उस वक्त किसी ने यदि ये फिल्म ली होती, इट वुड हैव बीन अ प्राइसलेस शॉट. और देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर ओपन सीढ़ी, और पिताजी यूं देख रहे हैं, तो पहला जो नेत्र मिलन हुआ 2 समधियों का, 2 फादर्स. ओ बेचारे, अब ही कुडंट कम डाउन, ही वाज इन बनियान एंड ऑल. उन्होंने ताली बजाई, उनका शायद बेटा भागा आया, छोटा बेटा था, और
फटफट उन्होंने, और फिर आए एंड एम्बैरसमेंट गिलोर। लेकिन खैर दोनों पिताजियों के स्वभाव गुलाबी। इवन डॉक्टर मानसिंह, मायाधर मानसिंह जी, great poet, author, he is also beautiful, happy, pleasant temperament, and my father also। तो बस वो बैठ गए वहाँ पे, और वो चाय आई, पानी आया, जलखिया यानी कुछ नाश्ता आया होगा, और ये सारी जो पहली मुलाकात। शाम को ही फिर निर्बंध, एंगेजमेंट सेरेमनी। तो मुझे याद है ऐसे कुछ ओढ़नी ओढ़ाई, हमारे यहाँ तो ये कुछ होता नहीं ऐसा, और सारे उनके जो परिवार वाली महिलाएं अंदर, और ये देख रही हैं, मुझे देख रही हैं। आई वॉज नॉट यूज टू दैट। फिर उनकी जो फैमिली, वो तलवार होगी, सॉर्ड, दे आर कॉल्ड खंडाया। खंडाया ने तलवार, जिनको आप क्षत्रिय कहते हैं, राजपूत कहते हैं यहाँ, खंडायत इन उड़ीसा। वो तलवार के साथ मेरा निर्बंध हुआ, एंगेजमेंट सेरेमनी हुई। वो तलवार निकल नहीं रही है, क्योंकि कभी निकाली नहीं वर्षों से। रस्टेड तलवार शायद थी, मुझे याद है। बाद में माय फादर ऑल्सो जोक्ड कि इसकी जो इसका एंगेजमेंट हुआ वो ऐसी तलवार के साथ हुआ जो खीरा को भी नहीं काट सके, विच मे नॉट इवन हैव कट द क्यूकम्बर। हंसने की बात है, इट्स अ जोक। नोबडी शुड टेक माय दिस थिंग सो सीरियसली कि आहत हो गए, सोनल मानसिंह ने हमारे बारे में ऐसा कहा। ये भी मेरे बारे में उड़ीसा में बहुत बातें चलाई गई। सेंस ऑफ ह्यूमर एंड टू लुक एट सिचुएशंस इन हाइंडसाइट विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। जिंदगी में यदि हम वो ना कर सकते हैं तो डूबे रहो अपने गम में, ठीकरा फोड़ते रहो अपने सर पे। आई एम नॉट वन ऑफ देम, nor was my father, nor my grandfather, nor my father-in-law। तो हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हमारी टिकट्स थी वापस जाने की, दिल्ली वापस हम जा रहे थे, कलकत्ता, भुवनेश्वर टू कलकत्ता, और इस बार उड़ के जाने का था, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के बॉम्बे। अब मेरे फादर इन लॉ, होने वाले ससुर जी ने कहा, why don't you leave Sonal with us? We would like to get to know her. She should also get to know us. You are Gujaratis, we are Odia, ये वो। तो उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया, मेरे पिताजी मान गए। तो पिताजी ने कहा, सोनिया तू यहाँ रह जा। मैंने कहा ओके, as simple as that। Can you imagine? तो पिताजी गए दूसरे दिन, मेरी टिकट कैंसिल हो गई और मैं वहाँ रह गई। This is the kind of ease in relationships and a deep understanding and respect even for your children that the parents note that your children आपके बेटे बच्चे हैं। संस्कार यदि आपने दिए हैं तो आपके मन में शंका कुशंका नहीं होनी चाहिए। You should not have doubts about them if you have brought them up with proper values and with respect for each other। तो ये बात मैंने देखी मेरे जीवन भर में। फिर मैं रही, आई थिंक 10-15 दिन रही। आई वेंट बैक टू बॉम्बे, और उसके बाद तुरंत हुआ कि अब विवाह हो जाना चाहिए। एंड द ब्राइड ग्रूम जो दूल्हे थे उनको वापस आने की छुट्टी नहीं मिली। तो ये तय हुआ फिर कि हमें वहाँ जाना है। सी इज़ वेरी अनयूजुअल इन माई लाइफ। इवन फॉर एंगेजमेंट आई हैड टू गो देयर एंड फॉर माई मैरिज ऑल्सो आई हैड टू गो देयर। उल्टा क्रम रहा मेरे जीवन में, समझ लीजिए। तो माई फादर, फिर मेरी बड़ी बहन तैयार हो गई, हु वाज ऑल्सो मैरिड, बट बहनों ने कहा कि जाओ जाओ साथ में जाओ। माई मदर स्टेड बैक विथ माई ग्रैंडफादर, दादाजी के देखने के लिए, उनको संभालने के लिए। और मेरे पिताजी मुझे ले गए, विदेश ले गए, और मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान किया। वहाँ पर भी मेरे रजिस्ट्रेशन पहले हुआ, सेरेमनी, और उसके बाद किसी के
टेरेस पे छोटा सा वो रहा अग्निकुंड, और कोई थे वहाँ के हमारे पुराने हिंदू जो बड़े कोई पदवी पे थे, वॉज इन सम बिग यूएन पोस्ट. सो ही सेड आई एंड कुछ मंत्र जो भी हुआ होगा. माई फादर डिड दैट. And then my father stayed, I think, for another 10 days. And then he came back. He and my sister, I think, went on to meet some friends and all that in Europe. My father left for India. इतनी सरलता सहजता से वो करते थे. There was no burden of my father, neither to his father, neither to his family, nor to his friends, nor to his children, nor to his grandchildren. I know that my younger brother's children, they adored him. तो ये तो है कि जो सेकंड जनरेशन होती है उनके साथ लगाव होता है. लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं जब I was 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, whatever, I used to go and lie down with my father रात को यूँ करके, and until I would fall asleep, my father had to do this. भाई पंपाड़ो गुजराती में. And he, poor thing, he was sleepy, and then if he stopped, he would gently remind me and say quietly between us, चुपचाप मुझे कहते थे, सोनिया बीजा कोई ने कहती नहीं, कोई आऊ नहीं करे, हाँ ये कहती ज नहीं. And he would laugh. So my father, who was Ajata Shatru, I come to that, how he supported his own father and my mother. So between my mother and my grandfather also there were tensions. Why? When I speak about my mother, I'll come to that. Like, it happens. My father, he was the one who was neither there nor there. Then at that time, he would have to speak quietly and alone to his father, speak quietly and alone to his wife, my mother, and again establish harmony in family. बाद में जब मैं याद करती हूँ, because I left Bombay, I told you in 1963 I ran away. In 1965, August 3rd, I got married, so we left, I think, end of July. उसके बाद तो मैं सीधी दिल्ली आ गई 1967 में बम्बई होते हुए. So इतनी सी जो मेरी यादें हैं मेरे पिताजी की, वो इतनी मजबूत हैं. बाद में of course मिलते रहे, मैं जाती रही. My parents also came to Delhi. When I got Padma Bhushan, I never got Padma Shri because I had opposed Indira Gandhi's emergency. I had refused to perform, dance, participate in any of their programs, and I was blacklisted. आप जानते हो. Those who don't know, I'm just saying that I was blacklisted from 1975. So no Padma Award for me, while my contemporaries all got them in the late 70s. I got my first Padma Award in 1992, January, Padma Bhushan straight away. My father and mother, before that had also come. At that time they specially came. And there are photographs they gave. They organized a party, of course I booked that. But it was a party given by them, lunch party, straight after the Rashtrapati Bhavan ceremony, must have been in February, March, at India International Center. That party photographs are so vivid. Pandit Ravi Shankar ji and so many other artists, so many of my friends. There was Sathe, Salve, Hegde, family friends and artist friends. All of them gathered to meet my parents and to celebrate my Padma Bhushan. So my father was always with me. My father passed away in 1995. He was born on 31st December. My पिताजी का जन्म हुआ 31 दिसंबर
1913 बम्बई में, 31st December 1913 इन बॉम्बे बॉर्न। उसके बाद वो 1995 15th July he passed away. I was in Delhi. I'd just been with him and my mother for 1.5 months in summer. By then I think he had had cataract operation. तो मैं दवाई डालती थी, उनको चलाती थी। कुछ विशेष बातें हुई परिवार के बारे में जो पहले कभी मैंने सुनी नहीं थी। तो मैं वापस आई और 15 जुलाई की बड़ी सुबह फ़ोन आया मेरे छोटे भाई का कि भाई गया। We used to call him Bhai. Why? Because my grandfather used to call him Bhai. Bhai, but Bhai. Because everyone, cousins, friends used to call him Aru Bhai. Aru Bhai. Morarji Desai used to call him Aru Bhai. Sardar Patel called him Aru. We called him Bhai. कि Bhai gaya. And how he went, that rented flat in which we were also born was on 3rd floor. आज का नहीं, पुराना 3rd floor जिसमें से आप 6 फ्लोर बना सकते हो आज. And the lift, the old lift had given way long time ago, and the spiral staircase he used to climb up and down, go to office, come back, climb up again. तो वो आए, उन्होंने घंटी बजाई, वो आयरन ग्रिल और अंदर का दरवाज़ा खुला रहता था, आयरन ग्रिल में ताला रहता था। वन अपार्टमेंट पर फ्लोर। वो उन्होंने घंटी बजाई, माय ब्रदर वाज एट होम, वो आया, उसने खोला। माय फादर अपैरेंटली सेड मैंने जरा बेसाड़। इट वाज वेरी स्ट्रेंज, ही हैड जस्ट बीन टू अ कंडोलेंस मीटिंग ऑफ हिज फ्रेंड, डियर फ्रेंड। मेरे भाई ने उनको पकड़ा और वहाँ जो सोफा उस पर बैठाया, he just sat and he went. That's it. Sukha mrityu. No ha-hu, no pain, no nothing. यूं गए। और मैं फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के गई। My mother was also arriving from Kutch, where she had gone. The collector had phoned her, and collector had gone and picked her up from wherever she was. तो मैं एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी और मैं वहाँ I stayed back for a week, 10 days until we finished all the rituals. Then I suggested that I would like to hold a memorial meeting for my father. Naturally, my mother was in shock still. मेरे बहन और सब ने कहा हाँ तुम करो ऑर्गेनाइज। आई ऑर्गेनाइज्ड इट एट भारतीय विद्या भवन चौपाटी बॉम्बे। एंड दैट हॉल जिसमें हमने किया था वॉज ओवरफ्लोइंग विद पीपल वी डिडंट नो। फ्रेंड्स, रिलेशंस तो थे। बाद में यू नो एज दे सॉर्ट ऑफ केम पास्ट माय मदर एंड अस एंड ऑल, अननोन फेसेस। कोई बोल रहा है कि मेरी बेटी का विवाह उन्होंने करवाया, he got my daughter married. Somebody says he got my son's scholarship. Somebody says he settled me in my business. Somebody says मेरी बीमारी का। We didn't know who all he had helped. And as I said, अजात शत्रु, what that means? अजात शत्रु का अर्थ जानते हो? अजात शत्रु, शत्रु का मीनिंग है एनिमी, दुश्मन। जात यानी जो जन्मा, अजात, इनका शत्रु कोई जन्मा ही नहीं। There was no enemy to my father. आज कलियुग में कितने लोगों के लिए आप ये कह सकते हो? कितने लोगों के लिए? हो सकता है कि आपके अपने परिवार में हो, देखिए, उनका आदर कीजिए। मैं तो नहीं कह सकती कि मैं अजात शत्रु हूँ
मेरा मेरा बिजनेस, ये मेरा वोकेशन ऐसा है, जो भी होगा। दादाजी वॉज नॉट अजात शत्रु, मे बी, आई डोंट नो। मेरे पिताजी वॉज डेफिनेटली अजात शत्रु। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उस वक्त के लोगों ने कहा है, unknown and known people, that he was the one who had no enemy. तो इतने बड़े एक हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती, अस्तित्व। So fortunate to have, to be born to such a father. उनका अंश में अरविंद मंगलदास पकवासा, the lotus that he was, the white lotus that he was, जिस पे कोई छींटा नहीं कीचड़ का, neither financial nor emotional nor business nor nothing. कितना पी गए होंगे, how much he must have taken in. तो मेरी बड़ी बहन भी कहती है, कल बात हम कर रहे थे, आरती बहन, पहुंचे हुए थे, पहुंचा हुआ था वो आत्मा। You don't have to sit in meditation all the time. He was a great Ganesh Bhakta. Ganesh Atharvaved, Durva, all that he used to do. मुझे बिठा के श्लोक सिखाते थे सुबह सुबह। पहुंचे हुए थे इंटरनली। आई थिंक वो जो यूं गए, तो हम कहते हैं ना, ज्योति परम ज्योति में विलीन हो गई, यही हुआ। बार बार मैं पिताजी को नमन करती हूँ, भाई તમે જ્યાં हो ત્યાંથી आशीर्वाद आपो। उनको मिठाई इतनी पसंद थी, दाल ढोकली, मिठाई, लड्डू, हलवा, पूरन पोड़ी, बहुत सुंदर आत्मा। आप भी अपने पिताओं को प्रणाम कीजिए, याद कीजिए, मनोमन तर्पण कीजिए, जन्म सफल हो जाएगा। प्रणाम।